हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, सबको प्रणाम. वेलकम टू Unimox. Now today we are going to discuss about a very important chapter in macroeconomics, and that is all about why do we study macroeconomics. The main purpose to study macroeconomics is to determine equilibrium level of income and output and employment. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका मेन पर्पस पढ़ने का जो है, जैसे माइक्रो का मेन पर्पस प्राइस डिटर्मिनेशन है, मैक्रो का मेन पर्पस है to determine equilibrium level of income, output and employment. और ये income, output and employment determine कैसे होता है? When aggregate demand is equals to aggregate supply. Now मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूं? Because आज का जो हमारा चैप्टर है, today's chapter, it's basically about the chapter income and employment. Now before we go into this chapter, I should tell you I'll divide the chapter into 4 or 5 parts. The first is the introductory part, जहां पे हम बात करेंगे about aggregate demand and aggregate supply. कि aggregate demand क्या होता है, aggregate supply क्या होता है, aggregate demand के components क्या होते हैं, aggregate supply के components क्या होते हैं. So as the name of the chapter goes, income, output and employment, सबसे पहले we should all know that in macroeconomics जो sectors होते हैं, basically there are 4 sectors. Now these 4 sectors are, one is household, the other one is firms, the third one is government, and the fourth one is foreign sector. So there are 4 sectors in macroeconomics. Now these 4 sectors में से household जो होता है, it is nothing else but household does a planned aggregate demand for durable, non-durable and semi-durable items. मेरा कहने का मतलब बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट AD, एग्रीगेट डिमांड. और एग्रीगेट डिमांड का दूसरा नाम है इट्स एग्रीगेट स्पेंडिंग. इसका मतलब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में देयर आर 4 सेक्टर्स which actually do aggregate demand, and these 4 sectors are household, firms, government and foreign sector. Households, basically households कौन सा डिमांड करता है? Households do a demand of planned consumption expenditure, जिसको हम लोग कैपिटल C बोलते हैं. The firms, they do a planned investment expenditure, जिसको हम लोग बच्चों कैपिटल I बोलते हैं. The government, it does a planned government expenditure, जिसको हम लोग कैपिटल G बोलते हैं. And the foreign sector does net exports, जिसको हम लोग X minus M कहते हैं. So overall what I want to say is that macroeconomics में 4 sectors होते हैं. पहला हाउसहोल्ड. ये हाउसहोल्ड कौन है? हमारा परिवार, आपका परिवार, हम सब का परिवार. That is the household.
Now, what does the household do? The household does a planned consumption expenditure. Planned consumption expenditure का मतलब हम as a household हम planned aggregate demand करते हैं for durable, non-durable, semi-durable goods as well as services. अब ये जो हमारा planned, ये जो हमारा what to say planned consumption expenditure होता है, it depends upon a word called as PDI. अब तुम बोलोगे सर ये PDI क्या होता है? ये PDI होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब मान लो एक परिवार का इनकम है 1 लाख रुपए. 1 लाख रुपीज इज द इनकम ऑफ अ फैमिली. तो 1 लाख में से सबसे पहले वो क्या करेगा? गवर्नमेंट को टैक्स देगा. मान लो 20,000 टैक्स दे दिया. उसके बाद उसको रेंट देना है और इंटरेस्ट देना है. दोनों मिलाकर 20,000 और गया. बचा कितना? टोटल एक्सपेंडिचर जो उसका यू कैन से नॉट अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर क्या है? 40,000 रुपीज. तो बचा कितना? 60,000. दैट 60,000 इज personal disposable income. That means personal disposable income is that part of the income which I can spend as well as save. और बोला यह जाता है कि एक हाउसहोल्ड का जितना पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहेगा उसका हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या उसका प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी उतना ही ज्यादा रहेगा. That means the first component of AD, ये जो aggregate demand है, इसका जो पहला component है, that is nothing else but it is C. और C का मतलब क्या होता है? Planned consumption expenditure, which is the planned aggregate demand of the households on durable, non-durable as well as semi-durable items, goods and services. और ये जो हाउसहोल्ड्स का पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर PDI. दैट इज ये जो हाउसहोल्ड्स का प्लान कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर PDI. और PDI क्या होता है? PDI इज नथिंग एल्स बट इट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. मतलब वो इनकम जो मैं टैक्स और रेंट, इंटरेस्ट ये सब देने के बाद जो मेरे पास बच जाता है और उसको या तो मैं खर्च कर सकता हूं या तो मैं सेव कर सकता हूं, उसी को पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोला जाता है. और बोला जाता है जितना ज्यादा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगा उतना ही आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होगा. तो मुझे लगता है आप सबको ये वर्ड सी अब समझ में आ गया होगा. मैं लास्ट में एक बार और बताऊंगा इसको, बट बिफोर दैट दूसरा जो सेक्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो कि प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड करता है वो है तुम्हारा फर्म्स. ये फर्म्स करता है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब फर्म्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट करता है. इन्वेस्टमेंट विद रिगार्ड टू फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल फॉर्मेशन करता है. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट करता है. तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म देते हैं आई. दैट मीन्स the second sector which does a planned aggregate demand is the firms, and the firms do planned investment expenditure, and this planned investment expenditure by the firms is on capital formation, that is on fixed assets. और ये जैसे यहां पे हाउसहोल्ड्स का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो डिपेंड करता है ये PDI पे. ये जो PDI है इस पे हाउसहोल्ड्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है. इन द सेम वे ये जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है किसका?
फर्म्स का, इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उतना कम उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा, और जितना कम उनका इन्वेस्टमेंट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उतना ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा। सो द सेकेंड सेक्टर जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कर रहा है आप लोगों को, वो है तुम्हारा फर्म्स। और फर्म्स क्या कर रहा है? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों क्या कहा जाता है? आई। मुझे लगता है ये दोनों एस्पेक्ट्स आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। थर्ड एस्पेक्ट जो है वो है गवर्नमेंट। दैट मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो तीसरा सेक्टर होता है वो तुम्हारा गवर्नमेंट होता है। अक्सर मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के आपको बोलता हूं, अक्सर बच्चे जब सेक्टर्स बोलते हैं ना तो बच्चों के दिमाग में रहता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर होता है बच्चों, ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सेक्टर्स होता है। मतलब एक इकोनॉमी में जब अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन जब आप सेक्टर की डिवाइड करोगे तब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आएगा। बट यहां पे हम बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड, अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट स्पेंडिंग, उसका जो सेक्टर्स है वो है हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। अब गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट भी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड करता है। एग्रीगेट डिमांड का दूसरा नाम क्या है? स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग कर रहा है ना। आप खुद देखो, हमारे देश का गवर्नमेंट वो स्पेंडिंग करता है ना, किस पे करता है? दो चीजों पे करता है। एक, ऑन प्रोवाइडिंग वेलफेयर एक्टिविटीज, मतलब गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, गवर्नमेंट हमारे को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट एग्रीगेट स्पेंडिंग कर रहा है। इन द सेम वे गवर्नमेंट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि वो बाहर से खरीदता है या कहीं से भी उसको करता है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो कि प्लान्ड कंजम्पशन, प्लान्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एंड इट इज रेफर्ड एज व्हाट? द वर्ड जी। एंड द फोर्थ वन इज फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। मतलब फॉरेन सेक्टर इज नथिंग एल्स बट whatever goods which are produced within the country, they are in demand abroad, as well as those goods जो कि बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं, they are in demand in India. इन दोनों का जो नेट होता है उसको हम लोग फॉरेन सेक्टर का बोलते हैं, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। तो ओवरऑल एक बार फिर से बता दूं, दैट इज if we are talking about the chapter income and employment, मैंने आपको बोला income and employment में, when we are talking about the chapter income and employment में we are going to talk about equilibrium, और equilibrium में सबसे पहले we'll be talking about aggregate demand and aggregate supply, because without aggregate demand एंड विदाउट एग्रीगेट सप्लाई के जाने बिना इस चैप्टर में हम जा नहीं सकते हैं। 2 मिनट में आपको फिर से ओवरऑल रिकैप करवा रहा हूं, क्योंकि बोला जाता है क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिस इज द टफेस्ट चैप्टर, और ये आपके लंबे समय तक काम आएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले एक वर्ड आता है इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, दैट इज इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए एडी एंड एएस की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड का बात किया कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? It is nothing else but it is the total volume of goods and services
which are demanded by all the 4 sectors of economics. मतलब इकोनॉमी का जो 4 सेक्टर्स होते हैं, कौन सा? पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म्स, थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर, and the fourth one is foreign sector. Got it? तो aggregate demand is done by all the 4 sectors. आपका क्या नाम है? हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड डज प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्लीज ये शॉर्ट फॉर्म आप समझ लेना. PL डॉट का मतलब हो गया प्लान्ड, ठीक है, और CONS डॉट का मतलब हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है. और फर्म्स क्या करता है? फर्म्स करता है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट क्या करता है? प्लान्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. और फर्म्स क्या करता है? नेट एक्सपोर्ट्स. तो इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म डालूं, अगर मैं इन सब के लिए एक शॉर्ट फॉर्म पुट करूं, तो ये C होता है, ये I होता है, ये G होता है, और ये X माइनस M होता है. सो एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. अब आया सबको समझ में? द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोला जाता है, अनलेस एंड अनटिल आपको टेबल्स नहीं आएंगे, आपको बॉडमास का रूल नहीं पता चलेगा, तब तक आप मैथ्स नहीं कर सकते. इन द सेम वे इस चैप्टर में जब तक आप इस वर्ड एडी का मतलब नहीं समझोगे, तब तक आगे जाने की तो सोचो ही मत. तो इसीलिए एडी इज द सम ऑफ सी किसके लिए बच्चों? हाउस होल्ड. हाउस होल्ड क्या कर रहा है? प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और तुम ही सोचो, हम और तुम किस पे एक्सपेंडिचर करते हैं? परचेस करते हैं ना, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज. और हमारा जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो हमारे किस पे डिपेंड करता है? वो हमारे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है. दूसरा फर्म्स, जो कि आई कर रहा है. आई रेफर्स टू व्हाट? आई रेफर्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. और ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से. और फर्म्स किस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है? फर्म्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑन कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फिक्स्ड एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करता है. थर्ड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी तो एक सेक्टर है ना. गवर्नमेंट किस पे कर रहा है? प्लान्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. आप खुद ही सोचो, आपकी देश की सरकार किस पे खर्च करती है? 2 चीजों पे. एक वेलफेयर एक्टिविटीज करता है, और दूसरा वो तुम्हारा इनकम कमाने के लिए भी खर्च करता है. जैसे वेलफेयर एक्टिविटीज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, तो ये सब उसका प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है. चौथा फॉरेन सेक्टर. फॉरेन सेक्टर को क्या बोलेंगे? एक्स माइनस एम. एक्स किसको डिनोट करता है? एक्सपोर्ट्स को, और एम किसको डिनोट करता है? इंपोर्ट्स को. जब कभी इकोनॉमिक्स में नेट वर्ड का मतलब आए तो इट इज द डिफरेंस. तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ व्हाट? एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. क्लियर? हां जी, क्लियर है ना सबको? वेरी गुड. अभी ये टॉपिक, अभी ये बात यहां पे खत्म नहीं हुआ है मेरे बच्चों. अभी ये बात यहां पे खत्म नहीं हुआ है. इसको खत्म होने के लिए क्या हो गया? इसको खत्म होने के लिए आपको टाइम लगेगा. अभी 1 मिनट मैं मिटा दूं इसको. अभी मैंने आपको क्या बोला? एडी इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस
एक्स माइनस एम। अब इस चैप्टर में एक पर्सन का नाम आता है जिसका नाम है कीन्स। कीन्स ने 1930 में, लगभग 1930 में, आपको पता है 1930 की खासियत क्या है? 1930s की खासियत यह है कि बिफोर 1930s यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्रीज में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, और उस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से पहले जिन इकोनॉमिस्ट की बोलबाला था, जिनका लोग सुनते थे, उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे। उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एडम स्मिथ, मार्शल, ये सब की बातें सुनते थे लोग। और वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लोग वो बिलीव करते थे कि भाई कभी अनएम्प्लॉयमेंट नाम का चीज नहीं होता, कुछ नहीं होता है। बट जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, और आपको मैं बता दूं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या हुआ, जो भी प्रोडक्टिविटी था वो फॉल कर गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी सब फॉल कर गया, और जितने डेवलप कंट्रीज थे, अमेरिका, ब्रिटेन, सबका इकोनॉमी डूबने लगा, प्राइसेस ऊपर चले गए, अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गया। तो उसके बाद कीन्स आता है। कीन्स 1930 के बाद उसने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या दिया? जनरल थ्योरी ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वहां पे उसने एडी की बात कही। वहां पे उसने कहा कि एग्रीगेट डिमांड इज ओनली डन बाय टू सेक्टर्स, दैट इज हाउसहोल्ड एंड फर्म्स। ये कौन कह रहा है? कीन्स कह रहा है। अभी मैं बताऊंगा, तुम लोग सोचोगे सर आपने ये गवर्नमेंट गायब कर दिया और आपने ये नेट एक्सपोर्ट्स गायब कर दिया। जब मन करता है आप उसको ले आते हो, जब मन करता है आप उसको गायब कर देते हो। भैया ये गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स में क्यों गायब कर रहा हूं ये मैं आपको अभी बताता हूं 2 मिनट में। बट सबसे पहले मैं आपको क्या बोला, 1930s के बाद इकोनॉमिक जगत में एक पर्सन आता है जिसका नाम है कीन्स। कीन्स ने क्या दिया? कीन्स ने दिया जनरल थ्योरी ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या दिया भाई कीन्स ने? जनरल थ्योरी ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और कीन्स ने क्लासिकल थ्योरिस्ट को, दैट इज मार्शल, एडम स्मिथ, सबको चैलेंज किया। वो किस ग्राउंड में चैलेंज किया वो हम नेक्स्ट, मतलब वो टॉपिक नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट टॉपिक में। बट उसने चैलेंज किया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को, और उसने अपना जनरल थ्योरी ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दिया। और उसमें उसने ये कहा कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है, दिस एग्रीगेट डिमांड इज डन बाय टू सेक्टर्स, हाउसहोल्ड एंड फर्म्स। हाउसहोल्ड जो है वो करता है प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, और फर्म्स करता है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दैट इज, ये हो जाएगा बच्चों सी और ये हो जाएगा आई। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स, अब एडी क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू कीन्स एडी हो गया सी प्लस आई। दैट मीन्स इस चैप्टर में आपको ये तो जानना है कि 4 सेक्टर्स, 4 कंपोनेंट्स होते हैं एडी के, सी आई जी एक्स माइनस एम। बट अकॉर्डिंग टू कीन्स aggregate demand is only done by 2 sectors, household and firms. Household planned consumption expenditure करता है, that is C, and firms
प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर करता है, दैट इज आई. सो एडी इज व्हाट? सी प्लस आई. अगर मैं एडी बोलूं तो आप क्या बोलोगे? सी प्लस आई अपने मन में. और अगर मैं सी प्लस आई बोलूं तो आप क्या बोलोगे? एडी बोलोगे. कहने का मतलब एडी को सी प्लस आई भी बोल सकते हैं, सी प्लस आई को एडी भी बोल सकते हैं. ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके. अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन तो बचा हुआ है, और वो क्या है? सर ये गवर्नमेंट कहां गया और ये नेट एक्सपोर्ट्स कहां गया? तो कीन्स बोलता है 1930s में जिस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो था पूरे वर्ल्ड का, आपको पता है 1930 से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही थी. सारे कंट्रीज एक दूसरे से लगे पड़े थे. जर्मनी वहां पे सबसे लड़ाई कर रहा था, ब्रिटेन लड़ाई कर रहा था. मतलब एवरी कंट्री, जितने भी बड़े बड़े कॉलोनियल कंट्रीज थे, इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थे, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, रशिया नहीं था उस समय यूएसएसआर था. ये सब आपस में लगे पड़े थे. तो इसीलिए बोला जाता है, कीन्स बोलता है उस समय देयर इज नो गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग. आज जैसे होता है ना, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट दो टाइप का है, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल. आज इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. बट उस समय गवर्नमेंट नाम का चीज नहीं था. ब्रिटेन में महारानी रूल कर रही होती थी, फ्रांस में मुसोलिनी रूल कर रहा होता था, जर्मनी में हिटलर अपना चला रहा था. दैट मीन्स उस समय या तो ऑटोक्रेटिक रूल था, या तो डिक्टेटरशिप था, या तो मोनार्की था. इसी टाइप का रूल था. तो कोई गवर्नमेंट टाइप का चीज नहीं था. इसीलिए कीन्स ने इस गवर्नमेंट को हटा दिया. बोलता है गवर्नमेंट का कोई जरूरत नहीं है. दूसरा, एक्स माइनस एम. कीन्स ने बोला एट दैट टाइम द इकोनॉमी वॉज क्लोज्ड. क्या था? क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों? जब देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो क्या उनके बीच में ट्रेड होगा? जर्मनी का ब्रिटेन से भी लड़ाई चल रहा था, जर्मनी का यूएसएसआर से भी लड़ाई चल रहा था. तो जर्मनी क्या इन दोनों से ट्रेड करेगा क्या? उसी तरह फ्रांस सबसे लड़ाई कर रहा था, तो क्या फ्रांस ट्रेड करेगा? तो उस समय कीन्स ने बोला द इकोनॉमी वॉज क्लोज्ड. मतलब किसी का एक दूसरे से ट्रेड रिलेशंस नहीं था. सो जिसके कारण कीन्स ने बोला जी और एक्स माइनस एम खत्म. तो बचा कौन? एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई. अब समझ में आया? यहां पे कोई किसी को गायब नहीं किया. हर चीज के पीछे एक फैक्ट है. गवर्नमेंट के पीछे क्या फैक्ट है? कीन्स ने बोला एट दैट टाइम देयर वाज नो गवर्नमेंट. गवर्नमेंट था ही नहीं. लोगों के द्वारा इलेक्ट किया हुआ कोई गवर्नमेंट ही नहीं था. तो आप कैसे बोल सकते हो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? तो इसीलिए इसको हटा दिया उसने. उसके बाद एक्स माइनस एम का मतलब नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स कब होगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कब होगा? जब इकोनॉमी ओपन होगा. आज इंडिया का इकोनॉमी ओपन है ना. 1990 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण आज हमारा इकोनॉमी ओपन है. ओपन का मतलब क्या? कोई भी इंडिया में आकर ट्रेड कर सकता है और इंडिया कहीं पे भी जाकर ट्रेड कर सकता है. बट उस समय इकोनॉमी क्या था? क्लोज था. तो जब इकोनॉमी क्लोज था तो नेट एक्सपोर्ट्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है. ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? 2 मिनट में रिवाइज इट. पहले से हम लोगों ने सबसे पहले किसके बारे में बात किया? एडी. एडी का पूरा नाम एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन मैं बोलूंगा तो कोई बात नहीं, आप किसी किताब में भी उसको पढ़ सकते हो. इट इज नथिंग एल्स बट इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज डिमांडेड बाय ऑल द 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. और कौन है ये 4 सेक्टर्स? ये 4 सेक्टर्स हैं हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर.
हाउसहोल्ड्स क्या कर रहा है? प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चों? सी। सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके आगे क्या वर्ड लग गया? प्लान्ड। फर्म्स क्या कर रहे हैं? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? आई। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? जी। एक्स माइनस एम क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। बट 1930 में कौन आया? कीन्स। क्या लेकर आया? जनरल थ्योरी ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। किस लिए कीन्स आया? कीन्स इसलिए आया क्योंकि क्लासिकल थ्योरिस्ट जो कह रहे थे वो लोग सब गलत कह रहे थे। उनको चैलेंज किया और उसने अपना थ्योरी लेकर आया, जनरल थ्योरी ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जिसके बाद उसने बोला, कीन्स ने क्या बोला? कीन्स ने बोला गवर्नमेंट नहीं है, फॉरेन सेक्टर भी नहीं है। क्यों नहीं है गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर? क्योंकि गवर्नमेंट था ही नहीं, इकोनॉमी क्लोज्ड था। तो एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ टू थिंग्स, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। क्लियर? मुझे लगता है मैंने कितने बार बोल दिया, आप लोगों को पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एम आई राइट? हां, क्लियर है सबको? सो एडी इज व्हाट? सी प्लस आई। सी क्या है? प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आई क्या है? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और एडी क्या हो गया? एडी इज नथिंग एल्स बट इट इज सी प्लस आई। इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, इट इज सी प्लस आई। क्लियर है? सो ये जो एडी का पंगा था ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है? मुझे लगता है मैंने तरीके से आपको बताया है ये चीज, और आपके दिमाग में ये बैठ भी गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। देखो, समाप्त होने वाला है ये। एडी क्या हो गया? दोबारा लिख लेते हैं भैया। एडी इज सी प्लस आई। ठीक है जी? सी किसका है? हाउस होल्ड का। क्या है ये सी? प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या इसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। अच्छा, मेरे बच्चों पे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कहना भूल गया। अक्सर याद रखना, एडी एग्रीगेट डिमांड को प्लान्ड स्पेंडिंग भी बोला जाता है, और इसको और एक नाम दिया जाता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर। बता सकते हो क्यों? सोचो, हम एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं। मान लो मैं एक कप ऑफ, अभी मुझे एक कप चाय चाहिए, तो मैं एग्रीगेट डिमांड करूंगा एक कप चाय का। बट उस चाय के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस चाय के लिए मुझे खर्च करना पड़ेगा। दैट इज प्लान्ड स्पेंडिंग करना पड़ेगा, या प्लान्ड एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो इसीलिए एडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडी को हम लोग प्लान्ड स्पेंडिंग भी बोलते हैं और प्लान्ड एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब प्लान्ड स्पेंडिंग भी हो सकता है, इसका प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी होता है, और एडी का दूसरा नाम क्या होता है? सी प्लस आई। क्लियर है मेरे? चलो जी, अब आ जाते हैं दूसरा, एएस। एएस क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई। एएस जो है, इट इज एग्रीगेट सप्लाई। और ये जो एग्रीगेट सप्लाई है बहुत इजी है, सुनो। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल आउटपुट। कुछ समझ में आया? मैंने ये कहा एग्रीगेट सप्लाई जो है ये हमेशा टोटल आउटपुट से इक्वल है। मतलब
आपके देश में जो भी टोटल आउटपुट हुआ वही तो सप्लाई होगा. सो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल आउटपुट. और टोटल आउटपुट व्हेन सोल्ड एट अ वैल्यू, जब टोटल आउटपुट को आप एक वैल्यू में बेचोगे तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेशनल इनकम. मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो इक्वल टू नेशनल इनकम. क्यों? क्योंकि जो भी टोटल आउटपुट आपके देश में प्रोड्यूस हुआ, आप सप्लाई कर रहे हो, उसको जब सप्लाई करोगे तो यू विल सप्लाई ऑलवेज एट अ वैल्यू. जब आप एक वैल्यू में उसको बेचोगे तो योर कंट्री विल गेट नेशनल इनकम. और नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इनकम को रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी, इनकम को तुम्हारा रिप्रेजेंट किया जाता है वाई से. इकोनॉमिक्स में इनकम को रिप्रेजेंट किया जाता है वाई से. और दूसरी बात, आप ही बताओ, मैं अपने इनकम का क्या करता हूं? मैं अपने इनकम को आइदर खर्च करता हूं या तो सेव करता हूं. सो इनकम इज नथिंग एल्स बट इट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स. तो इसीलिए यहां पे हम क्या बोल देंगे? AS इज इक्वल्स टू C प्लस S, दैट इज इक्वल्स टू Y. तो जिस तरीके से मैंने ADC प्लस I बोला, AS क्या हो जाएगा? Y से इक्वल होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? C प्लस S. क्लियर हो गया भाई? दोनों कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर है? हां जी, जल्दी से एक बार देखो, 1 मिनट में आप लोग इसको ध्यान से देखो और उसके बाद मेरे को बताओ सबको समझ में आया? अपने मन में से पूछो कि क्या बोला सर ने, आज मुझे क्या पढ़ाया. सबसे पहले हमने AD और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. बट वहां पे कौन आ गया? वहां पे 1930 में कीन्स आया. कीन्स ने अपना थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट लेकर आया और उसने बोला कि देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स जो कि प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड करता है, और वो है हाउस होल्ड जो कि C करता है और फर्म्स जो कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर करता है, दैट इज I. उसके बाद हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा. एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल आउटपुट. टोटल आउटपुट मतलब जो भी आउटपुट आपके देश में प्रोड्यूस हुआ बाय द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर. अब आया यहां पे, ये जो टोटल आउटपुट कर रहा है, ये कौन कर रहा है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. तो जो भी ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया, उसको जब आप एक वैल्यू पे, एक प्राइस पे बेचोगे तो आपके देश को क्या मिलेगा? आपके देश को नेशनल इनकम मिलेगा. और इनकम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? Y. और Y इज व्हाट? आइदर इट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. तो इसीलिए AS इज इक्वल्स टू व्हाट? C प्लस S, और AS इज ऑलवेज इक्वल्स टू Y. सबको क्लियर है? हां जी. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आपको फिनिश करता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है और जो एग्रीगेट सप्लाई है. मैंने आपको बोला ना, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. और इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव है कि इसका इक्विलिब्रियम लाना है. और इक्विलिब्रियम लाने के लिए जो 2 फोर्सेस है वो है फोर्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. और इसका इक्विलिब्रियम तब मिलता है व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS.
जब AD और AS इक्वल है तभी जाकर आपको इसका इक्विलिब्रियम मिलता है। ये समझ में आ रहा है? AD इज इक्वल्स टू AS रहेगा तभी जाकर इसका आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। बट उससे पहले मैंने आपको AD के बारे में बता दिया कि AD क्या होता है, C प्लस आई, और AS क्या होता है, Y, दैट इज इक्वल्स टू C प्लस